अच्छा, तो हमको स्पीकर नहीं दिख रहा है इसमें। आप अपने आप बाहर जा। उठो उठो उठो, तुम सो। आपकी आवाज तो आ रही है। देखो, पहले इसको शेयर करना फिर ये All our dear students, uh, in this third day, that is on 22nd of May, 21st of May, we are in the certificate course, and the 2 days session has already been commenced successfully. In the third day, we have Dr. Geeta Yadav ma'am, who will be speaking on the topic. Ma'am, kindly scroll the certificate course. The topic of presentation that she will be dealing with today will be DNA amplification, genetic maps, and genome project. So, students from our MSc 4th semester and from Chunar Mahavidyalaya will also be there in this session. So, I welcome all the students. And Dr. Rashmi ma'am, I would like to hear from you also so that we can start the session. Thank you, Shefali ma'am. Actually, from my side, the voice is getting echo. Yes, ma'am. That's There's a why, problem. that's why I'm not able to say anything. Please, Geeta ma'am, start the Yes, ma'am. session. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for your kind words. Dr. Geeta Yadav, ma'am, over to you. Uh, Ma'am, you're not visible. The camera is not on. Dr. Geeta, ma'am. Geeta, ma'am. yes yes ma'am, just Yes. I am starting. Yes, ma'am. Over to you, ma'am. Okay, This third thank you. session. थैंक यू शेफाली मैम, और थैंक यू हमारी हेड मैम डॉक्टर रश्मि सिंह मैम, और इस मीटिंग में उपस्थित सभी बच्चे। मैं आज थर्ड डे इस सर्टिफिकेट कोर्स में अपना जो टॉपिक है डीएनए एम्प्लीफिकेशन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक मैप्स एंड जीनोम प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले डीएनए एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, अगर कहीं पर भी आप लोगों को आवाज नहीं आएगी तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, it means making multiple copies of a specific DNA sequence. The specific DNA sequence means कि desired DNA sequence which we need, जिसकी कि हमें जरूरत होती है, जिसकी अधिक मात्रा में हमें कॉपीज बनानी होती हैं, उस डीएनए सीक्वेंस की हम एम्प्लीफिकेशन का मतलब है मल्टीपल कॉपीज उस डीएनए सीक्वेंस की बनाएंगे। और यह प्रोसेस हम नेचुरली होती है जब आपने देखा है कि सेल डिवीजन या फिर जो जेनेटिक मियोसिस के प्रोसेस के दौरान जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है डीएनए का, रेप्लिकेशन होता है और उसकी डबलिंग होती है, डबल कॉपीज बनती हैं। या फिर हम अलग से जो टेक्निक्स होती हैं जिसमें कि पीसीआर टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके थ्रू हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। व्हाट इज द गोल बिहाइंड दिस? द गोल इज टू increase the quantity of a particular DNA segment. The DNA segment which we need is obtained in increased quantity, allowing the easier analysis and detection. For its analysis and detection, we need is its increased quantity या multiple copies. Natural DNA amplification, that organism can naturally amplify DNA sequences through the process like gene duplication, DNA replication, where the copy of a gene is made, or through DNA replication, which creates copies of the entire genome. In the artificial DNA amplification, techniques like PCR allow scientists to selectively amplify specific DNA sequences in the laboratory setting. What is the purpose behind the amplification? For the diagnostic purposes, identifying the presence or absence of a particular DNA sequence, such as in genetic disease or in infectious disease, we need the
specific DNA to be amplified. Forensic sciences, creating the DNA fingerprints by amplifying specific DNA regions. We get very small amount of DNA from any crime scene or any other purposes, and we take it for the amplification to get the increased quantity of this DNA that is done by the process of PCR. Forensic science, creating DNA fingerprints by amplifying specific DNA regions, and for the research purposes, study gene expression and mutations. What are the methods which are used for the DNA amplification? That is, the first method which we will discuss in our lecture is polymerase chain reaction, that is PCR. Second is LCR, ligase chain reaction, cloning, isothermal amplifications. The PCR, what is PCR? Polymerase chain reaction. It is a technique to make many copies of a specific DNA regions in vitro. In the laboratory, we are able to make many copies of the DNA which we desire. For this process, we need primer. The primers are used for this process, and primer-mediated enzymatic amplification of specifically cloned or genomic DNA sequences. Possible to generate thousands to millions of copies of a particular section of DNA from a very small amount of DNA. Common tool used in medical and biological research labs. What is the history behind the PCR? The polymerase chain reaction that was originally developed by American biochemist Kary Mullis in the year 1983. For this discovery, he was awarded Nobel Prize in Chemistry in the year 1993. And in 1985, Cetus Corp, he was a scientist who isolated thermostat Taq polymerase from Thermus aquaticus, and this discovery revolutionized the PCR technique. This is the machine जिसके थ्रू हम PCR की प्रोसेस को रन कराते हैं. This is also called PCR machine or DNA amplifier. In this machine, there are wells. Here are wells where we keep small cuvettes, and these cuvettes contain all the needed substances which are responsible for the polymerase chain reaction. It provides favorable environment for the PCR technique, the temperatures and the other environmental conditions which are necessary that is provided by this machine. It regulates temperature during cycling process. All components are replaced in a thin wall tube, and then these tubes are placed in the PCR. What are the basic components which are needed for the PCR? They are first DNA template. What is the DNA template? This is the DNA that contains the DNA regions, yeah, target DNA which is to be amplified. Here we have the segments, yeah, the specific DNAs which we need for the amplification process. They work as template. So the first thing is we need for the PCR technique, that is DNA template, and the second, that is Taq polymerase. It is a DNA polymerase that is heat resistant, so that it can remain intact during the DNA denaturation process. During the process of denaturation, we have to generate the high temperature, and Taq polymerase, it is temperature resistant, so it doesn't denature during the process of denaturation. The third things is two primers. To initiate the DNA polymerization, we need primers that are complementary to the 3' end of each of the sense and antisense strands of the DNA target and needed to initiate DNA synthesis.
So the three things: DNA template, Taq polymerase, and primers. The next is the deoxynucleotide triphosphates. For the chain elongation, the building blocks which are added to the primers to elongate the chain and synthesize the complementary DNA. The building blocks from which the DNA polymerase synthesize a new DNA strand. Those are the deoxynucleotide triphosphates. There are four types. Buffer solution. This buffer solution, it provides suitable chemical environment for optimum activity and stability of the DNA polymerase. And 6 is bivalent cations, which are helpful in this process. They may be magnesium or manganese ions. What are the basic steps? These are the things we need for the polymerase chain reactions, and during the reaction the basic steps which are followed, that is the first step is denaturation, that is needed a temperature of 96 degrees Celsius. Heat the reaction strongly to separate or denature the DNA strand. First of all, the DNA strands which we take for in the reaction, they are needed separation. Both the strand, they need separation, and for this separation they are heated strongly to separate from each other. This process is known as DNA denaturation. The DNA strands, this provides single stranded template for the next step. For the process of DNA polymerization, the strands, they are needed to be separated and to be provided single strand which will work as template strand. And the second process is annealing. This needs a temperature 55 to 65 degrees Celsius. For this, we need to cool the reactions so the primers can bind to their complementary sequences on the single stranded template DNA. The third is extension, that is polymerization. Raise the reaction temperature so Taq polymerase extends the primers, synthesizing new strands of DNA. Here is the diagram which represents the process of polymerase chain reaction. Here we take a DNA from which we have to certain segments which must be amplified. We take the specific DNA sequence which is to be amplified. In this step, here is the first step where we need the separation of the DNA strands. Here are the two DNA strands which will be separated by heating, and after that the second step, that is annealing, and this step needs DNA polymerase या Taq polymerase, Taq polymerase या DNA polymerase, DNA primers, and nucleotides. The four type of nucleotide, that is deoxythymidine triphosphate, deoxycytidine triphosphate, deoxyadenosine triphosphate, and deoxyguanosine triphosphate. These are the four type of triphosphates which are needed for the chain elongation step. Here is the second step, that is annealing. The primers, they bind at the 3' end of both the strands. Here is the one strand and here is the other strand, and the primers, they bind to the 3' end and chain elongation. After that, the fourth step, that is chain elongation. This Taq polymerase enzyme bind to the primers and starts chain elongation, and the chain elongation that is done towards the 5' to 3' end at the both. After that, we obtain a complete set of both the strands.
Now we can see that in single step we are getting 2 strands, and this cycle will repeat 20 to 40 times, and we will get the multiple copies of DNA in its multiples. आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। मैम आ रही है। यस मैम। आ रही है? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ पा रहे हो ना? यस मैम, समझ में आ रहा है। तेज तेज तो नहीं है, ज्यादा स्पीड तो नहीं है? गीता मैम। नहीं नहीं मैम, नो सही है। मैम। क्यों अकीबा, ठीक है? यस मैम, सही है, समझ में आ रहा है। ओके ओके मैम, गीता मैम, हाँ इसको ना बाइलिंगुअल मोड में रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे हमारे दूसरे कॉलेजेस के भी जुड़े हुए हैं साथ में। अच्छा अच्छा मैम, ठीक है ठीक है। जी जी मैम, यहाँ पर देखिए आप लोग, एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। मैम का कहना है कि आप दोनों लैंग्वेज में समझ जाइए। तो यहाँ पर आपका एक डीएनए सेगमेंट है, ठीक। इस डीएनए सेगमेंट से हमें वो स्पेसिफिक डीएनए ले रहे हैं जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि जिसमें हम दोनों चेन को सेपरेट करते हैं। तो दोनों जो स्ट्रैंड, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, उसे हमें ब्रेक डाउन करना होता है। उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और ये स्ट्रैंड्स दोनों आपस में ब्रेक डाउन होती हैं, दोनों सेपरेट होती हैं। जब ये 2 डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती हैं तो स्टेप 2 में प्राइमर की बाइंडिंग होती है। प्राइमर जो होते हैं वो छोटे छोटे कम न्यूक्लियोटाइड्स के सेगमेंट्स हैं। तो ये प्राइमर्स हमारे दोनों स्ट्रैंड से, जो यहाँ पर हमारी स्ट्रैंड्स अलग हुई थी उनसे बाइंड करते हैं, और बाइंडिंग के बाद ये दोनों जो प्राइमर्स हैं इनसे आकर के टैग पॉलीमरेज बाइंड करता है और चेन इलांगेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें कि यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर के जुड़ते हैं और चेन इलांगेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके बाद हमें ये जो 2 डीएनए स्ट्रैंड, सिंगल डीएनए स्ट्रैंड थी, उससे हमें 2 डीएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज हो गए और 2 डीएनए स्ट्रैंड्स मिले। यहाँ पर ये प्रोसेस इस मशीन में पीसीआर में 20 to 40 टाइम्स रिपीट होती है, जिससे कि हमें जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट था उसकी ज्यादा क्वांटिटी, मतलब अधिक मात्रा में हमें डिजायर्ड डीएनए मिल पाता है। उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि स्टेप 1 जो डीएनए डीनेचुरेशन है, दैट इज एट 98 डिग्री सेल्सियस। और डीएनए डीनेचुरेशन का मतलब दोनों स्ट्रैंड हमारी सेपरेट हो रही है, जो हमने आपको पीछे भी बताया है। इसके बाद डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन के बाद एनीलिंग होती है। एनीलिंग में प्राइमर्स आकर के दोनों स्ट्रैंड से जुड़ते हैं, और फिर जुड़ने के बाद थर्ड स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। और इसके बाद इसकी मल्टीपल, यहाँ पर पूरा का पूरा डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये स्लाइड थोड़ा सा नीचे हो गई है तो वो विजिबल नहीं हो पा रहा है, सिंथेसाइज होती है। और इससे ये एरो दिखाता है कि जो हमारी 2 नई स्ट्रैंड बनी वो फिर से रिपीटेडली इसी साइकिल के थ्रू जाती हैं और लगातार हमारे डीएनए की कॉपीज बनती रहती हैं। क्या है जनरल गाइडलाइंस प्राइमर्स के लिए, कि प्राइमर क्या होते हैं? वो shorter primers have a tendency to go and anneal to the non-target sequences of the DNA template. जो छोटे प्राइमर्स होते हैं वो जा करके बाइंड करते हैं डीएनए टेम्पलेट पर, और short primers में offer sufficient for a simple template such as small plasmids. But a long primer may be required when using eukaryotic genome DNA as template. जब हम यूकैरियोटिक जीनोम को टेम्पलेट के रूप में यूज करते हैं तो हमें कंपैरेटिवली लॉन्गर प्राइमर की जरूरत पड़ती है। इन प्रैक्टिस 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड इज जनरली सैटिस्फैक्टरी। फॉर द यूकैरियोटिक जीनोम वी नीड अ प्राइमर विच लेंथ इज अबाउट 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड। जो जिस प्राइमर की लेंथ 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स लंबी होगी उसका यूज हम करते हैं। इसके बाद मिस मैच है कि डू नॉट नीड टू मैच द टेम्पलेट completely और often beneficial to have
CRG जो टेम्पलेट है उसमें साइटोसिन या गुआनिन उसके 3' टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स पे होने चाहिए, या which binds the 3' end of the primer template. इनका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जो प्राइमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग टेम्परेचर is that temperature at which 1/2 of the DNA duplex will dissociate. DNA duplex के आधी मात्रा जो होती है वो डिसोसिएट हो जाएगी एंड बिकम सिंगल स्टैंडर्ड, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगी, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। टिपिकली द एनीलिंग टेम्परेचर इज अबाउट 3 to 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर। और उसके बाद जब हम प्राइमर को डीएनए स्ट्रैंड से जोड़ते हैं और जब एनीलिंग होती है तो वह टेम्परेचर जो होता है वो मेल्टिंग टेम्परेचर से 3-4 डिग्री नीचे का होता है, कम का होता है। Primers with melting temperature in the range of 52 to 58 degrees Celsius generally produce the best result. The best primer for the replication or PCR process, the melting temperature must be in the range of 52 to 58 degrees Celsius. Primers with melting temperature above 65 degrees Celsius have a tendency for secondary annealing. इनका अगर टेम्परेचर ज्यादा है 65 के ऊपर है तो सेकेंडरी एनील होती है और वो आपस में ही जुड़ जाते हैं। इंटरनल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स शुड बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्राइमर्स टू फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ एंड नॉट बी अवेलेबल टू बाइंड टू द टेम्पलेट। जो इंटरनल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है वो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये जो होते हैं आपस में ही बाइंड कर लेंगे। प्राइमर एनीलिंग आल्सो इम्पोर्टेंट टू अवॉइड द टू प्राइमर्स बीइंग एबल टू एनील टू ईच अदर। ये दोनों एक साथ ना जुड़ जाएं, ये भी हमें अवॉइड करना होता है। इनका जो जीसी कंटेंट होता है, आइडियली अ प्राइमर शुड हैव अ नियर रैंडम मिक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 50% जीसी कंटेंट होगा वो प्राइमर हमारे लिए बेस्ट प्राइमर होगा। ये है क्वालिटीज जो प्राइमर्स के लिए होनी चाहिए। क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पर हमको पीसीआर का यूज करना चाहिए या कहाँ कहाँ पर हम पीसीआर का यूज करते हैं? उसमें जो फर्स्ट हमारा पीसीआर यूज होता है दैट इज फॉर मेडिकल एप्लीकेशन, जेनेटिक टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज म्यूटेशंस। जो जेनेटिक डिजीज हैं वो किस जीन से रिलेटेड हैं और उनमें जो म्यूटेशंस होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए हम पीसीआर को यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ डिजीज काजिंग जीन इज इन सस्पेक्टेड पेरेंट्स हु एक्ट एज कैरियर। वो पेरेंट्स जो किसी भी डिजीज के लिए कैरियर का काम करते हैं तो उन सस्पेक्टेड पेरेंट्स के जो जीनोटाइप्स होते हैं उनको हम पीसीआर के थ्रू डायग्नोस्टिक में यूज करते हैं। स्टडी ऑफ अल्टरेशंस टू ऑन्कोजीन में हेल्प इन कस्टमाइजेशन ऑफ थेरेपी। जो ऑन्कोजीन्स आर दो जीन्स विच कॉजेस कैंसर, तो कैंसर कॉजिंग जो जीन्स होते हैं उनकी स्टडी हम पीसीआर के थ्रू करते हैं और इनसे जो थेरेपी, जो ड्रग्स हम देते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए भी पीसीआर का यूज हम करते हैं। Can also be used as part of a sensitive test for tissue typing, vital or organ transplantation genotype of embryo. हम टिश्यू टाइपिंग में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में पीसीआर का यूज करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज एप्लीकेशन, एनालाइजिंग क्लिनिकल स्पेसिमेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स इंक्लूडिंग HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। इन सब डिजीज की एनालिसिस में, जो इन्फेक्शियस डिजीज है इनकी एनालिसिस में, ये HIV की एनालिसिस में, हेपेटाइटिस की एनालिसिस में, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन सभी डिजीज की जो क्लिनिकल एनालिसिस है वहां पर हम पीसीआर का प्रयोग करते हैं। डिटेक्शन ऑफ न्यू वायरुलेंट सब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स। कुछ एपिडेमिक्स के
काजल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो वायरुलेंट सबटाइप्स होते हैं, जिनकी वजह से ये बीमारियां फैलती हैं, उनकी डायग्नोसिस में, उनके डिटेक्शन के लिए भी हम पीसीआर का उपयोग करते हैं। फॉरेंसिक एप्लीकेशन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुने हैं। तो जो भी फॉरेंसिक जांच होती है, जहां पे आपको थोड़ा सा अमाउंट में डीएनए मिलता है और उसको एम्पलीफाई करा के हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, प्लॉटिंग के थ्रू जो है उसको मैच कराते हैं, वहां पर जो डीएनए हमें किसी भी क्राइम सीन से ऑब्टेन्ड होता है, उसमें हम पीसीआर का यूज करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, जिसके थ्रू हम आगे की जो टेक्निक्स हैं उनको परफॉर्म करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी कैन आइडेंटिफाई एनी वन पर्सन फ्रॉम मिलियंस ऑफ अदर्स इन केस ऑफ क्राइम सीन। हमें मिलियंस ऑफ पीपुल्स के बीच में एक व्यक्ति को छांटने में पीसीआर हमारी मदद करता है। पैटर्निटी टेस्टिंग में, कि जहां पर भी इस तरह के केसेस होते हैं, पैटर्निटी के लिए अगर चेकअप है कि कोई इस बात से मुकर रहा है कि जो संतान है वो उसकी है या नहीं, तो हमें पीसीआर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम उसकी टेस्टिंग में हमें मदद मिलती है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसेस है। ये कैसे रिसर्च एंड Research and molecular genetics helps to compare the genomes of two organisms and identify the difference between them. जब कभी आपको दो ऑर्गेनिजम्स के जो जीनोम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उनके बीच के डिफरेंस ज्ञात करने होते हैं, तो उसके लिए भी हम पीसीआर का उपयोग करते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, minute quantities of DNA from any source such as fossilized material, hairs, bones, mummified tissues, इन सब से जो हमको बहुत कम मात्रा में डीएनए प्राप्त होता है, उस डीएनए की अधिक कॉपीज, अधिक मात्रा में उस डीएनए की कॉपीज बना करके उनकी एनालिसिस में पीसीआर हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर एम टू कंप्लीट मैपिंग, एक सबसे अच्छा जो एग्जांपल है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। इसकी कंप्लीट मैपिंग और इसकी अंडरस्टैंडिंग में हम पीसीआर का उपयोग करते हैं। एडवांटेजेस क्या है पीसीआर के? ये जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑटोमेटेड रिएक्शन है, फास्ट है और रिलायबल है। ठीक है, इस पे हम, इसके जो रिजल्ट हैं वो सटीक होते हैं और काफी यूजफुल हैं। कंटेन लेस चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन, चूंकि बंद वेसल में हम रिएक्शंस कराते हैं, छोटी छोटी बॉयल्स होती हैं जिनमें हम सभी रिक्वायर्ड केमिकल्स को मिला करके उसको कैप को क्लोज करके मशीन में रख के बंद कर देते हैं, तो इस वजह से जो कंटेमिनेशन है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाई आउटपुट है, मतलब ये जो पीसीआर टेक्निक है वो हाईली हमारे लिए मतलब एडवांटेजियस है, इसका जो आउटपुट है वो काफी अच्छा है। सेंसिटिव टेक्निक है, आपको एक्सपेरिमेंट के पहले सावधानियां बरतनी है। ब्रॉड यूजेज है, कई जगहों पे यूज होता है, और आपने देखा क्लिनिकल में, रिसर्च में और पैटर्निटी केसेस में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सभी जगहों पे हम पीसीआर को यूज करते हैं, तो इसका यूज जो है वो ब्रॉड है। डिफाइंड, इजी टू फॉलो प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फिक्स हैं, इसलिए इनको फॉलो करना आसान है, हम आसानी से लेबोरेटरी में पीसीआर को रन करा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक मैप। ठीक है, क्या है जेनेटिक मैप या जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक मैप्स, ये क्या बताते हैं हम? ते मॉलिक्यूलर जेनेटिक मैप्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो रिलेटिव लोकेशंस हैं जीन्स की,
और अदर जेनेटिक मार्कर्स की वो क्रोमोसोम पर कहाँ स्थित हैं। ठीक है, इन्हें लिंकेज मैप भी हम कहते हैं। और लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप हमें ये बताते हैं कि जो जीन्स की या जो जेनेटिक मार्कर्स की क्रोमोसोम पर लोकेशंस हैं वो कहाँ हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय एनालाइजिंग हाउ ऑफन जेनेटिक मार्कर्स आर इनहेरिटेड टुगेदर। आपको मैंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में पहले भी बताया था कि क्रोमोसोम पर जो जीन जो होते हैं क्लोजली लोकेटेड होते हैं, उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ इनहेरिट होते हैं, और जो डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं उनकी तुलना में जो जीन क्लोजली लोकेटेड होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में लगभग साथ साथ इनहेरिट होते हैं। तो जो जेनेटिक मार्कर्स हैं इनकी क्रोमोसोम पे लोकेशंस क्या है। Closer to markers are on a chromosome, the more likely they are to be inherited together. जब वो क्रोमोसोम पर पास पास होते हैं तो ये चांस होता है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाएंगे, और ये जो मैपिंग है उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं हमको। यहाँ पर देखिए, एक ये साइटोजेनेटिक मैप है, एक ये क्रोमोसोम दिखाया गया है। इस पर स्थित ये जो जीन्स हैं या इस पर जो आपके जेनेटिक मार्कर्स हैं इनकी पोजीशंस हैं, और ये जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप दो चीजें इसमें रिप्रेजेंट की गई हैं। थोड़ा सा इमेज जो है वो ब्लर है, तो ऊपर देखिए ये जेनेटिक मैप लिखा हुआ है जिसमें ये डिस्टेंस बताई गई है कि ये जीन कहाँ पर स्थित है, और CM लिखा है सेंटीमार्गन। यहाँ पर फिजिकल मैप है, यहाँ पर ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट की गई है कि ये जीन जो है फिजिकली कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और नीचे DNA सीक्वेंस बताया गया है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा DNA है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ये सीक्वेंसेस हैं। जो जेनेटिक मैप्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन जो इवेंट्स होती हैं उनमें ये यूज होते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन जेनेटिक मार्कर्स। जो जेनेटिक मार्कर्स हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस ही रिकॉम्बिनेशन को डिसाइड करती है। अगर जेनेटिक मार्कर्स क्रोमोसोम पे पास पास स्थित है तो रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज होगा वो अधिक होगा, अगर वो दूर दूर स्थित है तो आपका रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज यानी कि लिंकेज जो होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो RFLP है, ये एक टेक्निक है दैट मेजर्स द डिफरेंसेस इन होमोलॉगस DNA सीक्वेंसेस। जो दो होमोलॉगस DNA सीक्वेंसेस होते हैं उन होमोलॉगस DNA सीक्वेंसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको कैलकुलेट करने की एक टेक्निक है RFLP, जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसे हम शॉर्ट में RFLP के नाम से जानते हैं। ये जो होमोलॉगस DNA सीक्वेंस होते हैं उनके बीच में दो जेनेटिक जो मार्कर्स हैं उनके डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। करेंटली जीन मैपिंग एनालिसिस टारगेटिंग सिंगल जीन डिसऑर्डर, ठीक है, यूजेज शॉर्ट टैंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म। एक ये दूसरी मेथड है जो कि जीन मैपिंग के लिए यूज की जाती है। एक थर्ड मेथड है SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड polymorphism. This is used in genome-wide association and linkage analysis. Genetic research linkage analysis is studied using the inheritance of characteristics and genetic signatures like SNPs and microsatellites. इसके बाद फोर्थ मेथड जो है ये है आपका जीनोम-वाइड एसोसिएशन। Connections between traits and markers like SNPs and microsatellite by treating the population as a single family. पॉपुलेशन को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हुए वहां पर हम ट्रेट्स और मार्कर्स को SNPs और माइक्रोसैटेलाइट के द्वारा कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये 3-4 मेथड्स हैं जो कि जेनेटिक मैपिंग में यूज होती हैं। इनमें से जो RFLP है उसका हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब एक प्रोजेक्ट है जिसको इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के नाम से जानते हैं।
और ये 1990s में बिगिन हुआ था। वो इसका एम क्या था? जनरेट फिजिकल जेनेटिक एंड सीक्वेंस मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के लिए एक मैप तैयार करना, सीक्वेंस द जीनोम ऑफ अ वैरायटी ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। कई सारे जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो जीनोम्स होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग कैसे की जाए, उनकी सीक्वेंसिंग के लिए to develop improved technologies for mapping and sequences। डीएनए मैपिंग और डीएनए सीक्वेंसेस की एनालिसिस के लिए किस तरह से हमको एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, इन सभी के लिए 1990 में एक इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके लिए जो मैपिंग है उसमें फर्स्ट जो नीड है हमारी वो RFLP है, जो जनरेटेड बाय प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट। अब यहाँ पर देखिए एक डीएनए है, उसके दो फॉर्म है, ठीक है, ये सेम डीएनए है, लेकिन हम जानते हैं कि जो एलील होते हैं दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन द करेस्पॉन्डिंग, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उन पे स्थित होते हैं। तो यहाँ पर एक पोजीशन है जो पॉलीमार्फिक रेस्ट्रिक्शन साइट है। एक पार्ट जो डीएनए का है, यहाँ पर ये साइट है पॉलीमार्फिक रेस्ट्रिक्शन साइट, और आपको फिगर में दिख रहा है कि जो दूसरा पार्ट है जिसमें एलील 2 है, वहां पर ये पॉलीमार्फिक रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो नहीं दिख रही है। तो अब इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड करके इसके फ्रैगमेंट्स करते हैं हम। तो जो फर्स्ट डीएनए है जहां पर पॉलीमार्फिक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, उस डीएनए के जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं, इनको बायोलॉजिकल सीजर्स कहते हैं। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करते हैं। इस डीएनए को इसने कट किया 4 कॉपीज में, 4 फ्रैगमेंट्स। देखिए एक ही जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसका जो एक पार्ट है डीएनए, उसको इसने 4 फ्रैगमेंट्स में कट किया, और जो दूसरा डीएनए है उसको इसने 3 ही फ्रैगमेंट्स में कट किया। इसका मतलब कि जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पर है वो इसमें नहीं है, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में नहीं है, इसलिए इसके 3 ही फ्रैगमेंट्स हुए। तो डीएनए मॉलिक्यूल on the left side has a polymorphic restriction site। ये जो आप देख रहे हैं जो मार्क विद द एस्टेरिक, जिसको स्टार से मार्क किया गया है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑन द राइट। जो राइट डीएनए मॉलिक्यूल है उस पे नहीं है। और RFLP इज रिवील्ड आफ्टर ट्रीटमेंट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके ट्रीटमेंट के बाद दोनों के जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हैं उनकी जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, because one of the molecule is cut into 4 fragment whereas the other is cut into 3 fragment। एक साइट इसमें है और इसमें नहीं है, जिसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उन्होंने एक जो RFLP का रिजल्ट आया, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें एक के 4 फ्रैगमेंट्स हैं और दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसका 3 ही फ्रैगमेंट है। इसका मतलब जो पॉलीमॉर्फिक रेस्ट्रिक्शन साइट थी वो दूसरे में एब्सेंट है। दूसरा, अब जब रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये डिफरेंसेस वेरिएशंस, इसी का जो वहां पे फ्रैगमेंट्स थे उनकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई है। आप ये देखिए कि यहाँ पर एक डीएनए लिया गया है और यहाँ पे दूसरा डीएनए लिया गया है। एक डीएनए में MSTL रेस्ट्रिक्शन साइट है जिसको यहाँ पे ये डिनोट कर रहे हैं, और दूसरे डीएनए में जो MESTL रेस्ट्रिक्शन साइट है that undergone mutation and the mutation destroys one restriction site। और because of mutation जो यहाँ पर बीच में रेस्ट्रिक्शन साइट थी वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई है, उसके सीक्वेंस से चेंज हो गए, वो म्यूटेशन रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर नहीं है। अब इसकी वजह से जो हम यहाँ पर जब इन दोनों डीएनए का डाइजेशन करेंगे, जब इन दोनों डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, स्मॉल फ्रैगमेंट्स करेंगे, तो दोनों के इक्वल फ्रैगमेंट्स नहीं आएंगे।
यहाँ पर जब हम इनका डाइजेशन करते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनका सेपरेशन करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो बराबर मॉलिक्यूलर वेट के फ्रैगमेंट्स होंगे वो बराबर हाइट पे सेटल होंगे। अब इसके जो नॉर्मल डीएनए था उसके जो फ्रैगमेंट्स थे वो इस रो में आए हैं, और जो हमारा डिजीज्ड डीएनए था उसके जो फ्रैगमेंट है वो इस रो में आए। अब जब दोनों को हम मैच कराते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो दो साइड्स थी ये हैं, और इसमें जो एक एक्स मतलब ये साइड जो थी ये चेंज है, ये अनमैच्ड डीएनए है। नॉर्मल से जो डिजीज डीएनए है वो अनमैच्ड है, ये सदर्न ब्लॉटिंग का रिजल्ट है। तो इस तरह से हमको किसी भी स्पेसिफिक डीएनए में जो चेंज है सीक्वेंसेस में, दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, रेडिएशन और एनी डिजीज, उसका पता लगाने में ये जो टेक्निक है वो हमारे लिए यूजफुल है क्लिनिकली, और इन रिसर्च पर्पजेस हम इस टेक्निक को यूज करते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाने में और उनकी एनालिसिस में। बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम, बहुत अच्छे समझ आ रहा है। ठीक है, स्पीड तेज तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. चुनार के जो बच्चे जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं? चुनार के कुछ बच्चे जुड़े हैं? मैम सब केएन पीजी के ही हैं। नो क्लियर मैम। है? नहीं मैम, दीपिका द्विवेदी और शिवानी जायसवाल दो बच्चे जुड़े हैं जो कि मैम फास्ट तो नहीं है रश्मि मैम? मैम फास्ट तो नहीं है स्पीड? नहीं, फास्ट भी नहीं है मैम, और समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है मैम, जी थैंक यू मैम। क्या एप्लीकेशन है बच्चों, जैसा कि मैंने तुमको पीछे ही बताया कि इट हैज बीन यूज्ड फॉर सेवरल जेनेटिक एनालिसिस। जब हमको किसी भी जीन में म्यूटेशन है या जो भी हमको अगर डिजायर्ड कोई जीन लेना है तो उसकी एनालिसिस में हम RFLP का यूज करते हैं। Determine the status of genetic disease such as cystic fibrosis in individuals। जो फाइब्रोसिस है, सिस्टिस फाइब्रोसिस है, इसकी स्टडी के लिए एक्चुअली जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें भी ये चीजें शामिल थी। टू डिटरमाइन और कंफर्म द सोर्स ऑफ DNA सैंपल सच एज पैटर्निटी टेस्टेड और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इनमें भी हम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। जेनेटिक मैपिंग में टू डिटरमाइन रिकॉम्बिनेशन रेट्स एंड दैट शो द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन द लोकाई। जो पर्टिकुलर जीन्स हैं उनकी क्रोमोसोम पे जो लोकेशन है, जो DNA पे उनका स्थान है, उसको जानने के लिए हम RFLP का यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाई कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन इन द फैमिली, किसी भी फैमिली में वो कौन है जो कैरियर का काम कर रहा है, जो जहां पे म्यूटेशन अकर हो रहा है, उसकी जानकारी के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ये टेक्निक हाईली सेंसिटिव मेथड है फॉर डिटेक्टिंग पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू आउट द जीनोम एंड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर। मतलब ये बहुत ही फेमस हो रही है और सेंसिटिव टेक्निक है जिसका कि हम यूज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिवली एम्पलीफाइंग अ सबसेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स के छोटे फ्रैगमेंट्स हैं उनके एम्पलीफिकेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ DNA fragments obtained after digestion of genomic DNA with restriction endonucleases। जो हमारे पास एक बड़ा DNA होता है उसका जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से डाइजेशन करते हैं तो ये स्पेसिफिक जो सीक्वेंसेस होते हैं वहां पर DNA को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक मिक्सचर मिलता है जो DNA का, जिसमें कि जो DNA फ्रैगमेंट्स होते हैं वो कई लेंथ के होते हैं और अधिक मात्रा में होते हैं। इट परमिट्स डिटेक्शन इन एनी बैकग्राउंड और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूडिंग पूल DNA सैंपल्स एंड क्लोन DNA सेगमेंट्स। इसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमने
पूल डीएनए लिया था और जो हमने क्लोनिंग के बाद डीएनए ऑब्टेन किया, उसमें कोई अंतर तो नहीं है? क्या एप्लीकेशंस हैं इनके? टू डिटेक्ट वेरियस पॉलीमॉर्फिज्म इन डिफरेंट जीनोमिक रीजन्स, for the identification of genetic variations in strains or closely related species of plants, fungi, animals and bacteria. इन सब में जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं कि कुछ समय बाद या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में के जो जीन्स हैं उनमें क्या वेरिएशंस हो रही हैं, उनकी स्टडी के लिए हम जो RFLP है उसका यूज करते हैं। और इसी से मिलती जुलती दो टेक्निक और हैं, एक AFLP और एक QTL, जिनका की उपयोग भी हम लोग क्लिनिकल और जो जीन मैप है इसमें करते हैं। Molecular biology techniques to examine DNA molecules directly। मैपिंग है आपका, एक मिनट आगे हो गया। फिजिकल मैपिंग के बारे में बता रहे हैं। जो अभी आपने देखा जेनेटिक मैप, उसमें जो फिजिकल मैपिंग है, ठीक है, यूजेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक टू एग्जामिन डीएनए मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट मैप्स शोइंग द पोजीशंस ऑफ द सीक्वेंस फीचर्स इंक्लूडिंग जीन्स। जेनेटिक मैप पर जो जीन्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, फिजिकल डिस्टेंस, जैसे उन्होंने डिस्टेंस को मेजर कर लिया डायरेक्टली जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये हमारा फिजिकल मैपिंग कहलाता है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन जीन्स आर शोन इन बेस पेयर्स। एक जीन दूसरे जीन से कितनी बेस पेयर की दूरी पर स्थित है। जब हम जेनेटिकली करते हैं तो उसको सेंटीमार्गन में करते हैं, और यहाँ पर हम फिजिकल मैपिंग में बेस पेयर में करते हैं, ये याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स आर शोन इन बेस पेयर्स रादर देन मैप्स यूनिट। Preparation of physical maps requires cloning of many pieces of DNA and size of these segments। इसके लिए हमको जो DNAs होते हैं उनकी कई सारी कॉपीज की जरूरत होती है और पीसेस, जिससे कि हम इनके सेगमेंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फिजिकल मैपिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? रेस्ट्रिक्शन मैपिंग लोकेट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑन अ DNA मॉलिक्यूल ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेज फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। जो आपने रेस्ट्रिक्शन मैपिंग की थी वहां पर वो लोकेट करते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सीक्वेंसेज को, लेकिन जो फिजिकल मैपिंग है उसमें जो फ्लोरेसेंट या इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें मार्कर की लोकेशंस मैप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, अ प्रोब कंटेनिंग द मार्कर टू इंटैक्ट क्रोमोसोम्स, और STS है। क्यों जीन मैपिंग करते हैं? जीन मैपिंग के क्या महत्व है? ये एनाटमी है ह्यूमन जीनोम की या किसी भी जीन की जो एनाटमी है। कैसे आपको पता चलेगा कि एक DNA या क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं वो किस तरह से स्थित हैं? जब हम लोग किसी प्लांट की एनाटमी करते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसके अंदर जो टिश्यू है वो किस तरह के हैं और उनका अरेंजमेंट किस तरह का है। उसी तरह से जो हमारा जीन मैप है, ये ह्यूमन जो जीनोम है उसकी एनाटमी है। हमारे जीनोम में कौन सा जो मार्कर है या कौन सा स्पेसिफिक जीन है वो किस पोजीशन पर स्थित है, इसकी जानकारी हमको जीन मैपिंग से मिलती है। इट इज प्रीरिक्विसाइट टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम है उसकी जो फंक्शनिंग है, किस तरह से वो काम करता है, किस जीन के क्या हमको इस रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सारी चीजें हमको जीन मैपिंग से ज्ञात होती हैं। हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ द हेट्रोजेनाइटी एंड सेग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस। जो ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेज हैं उनकी एनालिसिस में हेल्प मिलती है। हेल्प्स टू डेवलप मेथड्स फॉर जीन थेरेपी। जो जीन थेरेपी है उसके लिए मेथड्स को डेवलप करने में जो जीन मैपिंग है वो हमें हेल्प करती है। प्रोवाइड्स क्लिनिकली यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट लिंकेज। जो लिंकेज है उसके बारे में हमको पता चलता है कि अगर कोई
हार्मफुल जीन है लेकिन वो किसी जीन के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो वो इनहेरिट होता ही होता है। तो उसकी पोजीशन और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमको इसकी वजह से जीन मैपिंग से प्राप्त होती है। Major insights from the human and modern organism genome sequences. Approximately 30,000 human genes, they are mapped. Gene encodes their non-coding RNAs and proteins. जो non-coding RNAs होते हैं, tRNAs हैं, small nucleolar RNAs हैं और small nuclear RNAs हैं। ये सब जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जीनोम सीक्वेंसी है उसके लिए हमारे लिए आवश्यक कंपोनेंट्स हैं। अब बात आती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कि क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके बारे में अभी मैंने शुरू में आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया है। जो हम लोगों का थर्ड मेजर टॉपिक है जीन मैपिंग के बाद, वो जीनोम प्रोजेक्ट है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया था, 1990 में स्टार्ट किया था और लगभग 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वाइड। उन्होंने मतलब पूरी दुनिया में इस पर एफर्ट लगाया था और सितंबर 99 में यह पब्लिकली अनाउंस हुआ था और इसका एक रफ ड्राफ्ट हम लोगों के सामने 2000 में आया था और लगभग 90% जो ह्यूमन जीनोम है उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था इसमें। और कंप्लीट हाई क्वालिटी डीएनए सीक्वेंस 2003 में हमको पूरा एक हाई क्वालिटी डीएनए सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मिला। क्या गोल्स थे, किन गोल्स को लेकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इट वाज टू ऑब्टेन फिजिकल मैप ऑफ जीनोम। सबसे पहले हमको जो हम जीनोम है उसका एक फिजिकल मैप चाहिए था जो कि अलाउ करेगा रफली लोकेशन ऑफ जेनेटिक फ्रैगमेंट्स। जो जेनेटिक फ्रैगमेंट्स हैं उनकी जो लोकेशंस हैं वो क्या होंगी? डेवलप सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, इंक्रीज थ्रू आउट एंड रिड्यूस कॉस्ट, ऑब्टेन ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस। ह्यूमन जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग, इट विल अचीव हाईली एक्यूरेसी, मेक फ्रीली एक्सेसिबल। ये अधिक से अधिक एक्यूरेट होगा और आसानी से एक्सेसिबल होगा, इस तक पहुंच सकेंगे हम लोग। एनालाइज ह्यूमन सीक्वेंस वेरिएशंस, आइडेंटिफाई एसएनपीज, डेवलप थेरेपी। किस तरह से ट्रीटमेंट, अगर कोई जो ह्यूमन सीक्वेंस में वेरिएशंस हैं तो उसकी थेरेपी क्या होगी। क्रिएट बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स। एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है जिसके थ्रू हम डाटाबेसेस डेवलप करते हैं और ये एनालिसिस एल्गोरिथम पर बेस है। आइडेंटिफाई जीन एंड कोडिंग रीजन्स। जो डीएनए में जीन्स हैं और उनसे जो कोडिंग रीजन्स हैं उनसे डेवलप कर लेते हैं इफिशिएंट इन विट्रो और इन सिलिको मेथड्स। सीक्वेंस अदर मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, फ्रूट फ्लाई, वर्म, माउस, इन सब के जीनोम की भी सीक्वेंसिंग इसी के बेसिस पे हम करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एथिकल या लीगल या सोशल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमको पॉलिसीज और पब्लिक अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत होती है। क्या स्टेप्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट वाज कैरीड आउट इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप वाज टू जनरेट द क्रोमोसोम मैप। सबसे पहले जो हमारा क्रोमोसोम है उसका एक मैप तैयार करना था और लार्ज स्केल डीएनए सीक्वेंसिंग, अधिक से अधिक मात्रा में जो डीएनए थे उनकी सीक्वेंसिंग करना और एनोटेटिंग द डीएनए सीक्वेंस, उन जो डीएनए सीक्वेंस थे उनको एनालाइज करना। अब अरेंजमेंट ऑफ जीन्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ देयर लिंकेज। जो जेनेटिक मैप आपको पहले बताया, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जीन्स हैं जो बेस्ड हैं उनकी एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है, उनकी लिंकेज क्या है। डीएनए मार्कर्स और प्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। जेनेटिक मैप बनाने में हमको डीएनए मार्कर्स या डीएनए प्रोब्स की भी जरूरत पड़ती है। इफ दे डिटेक्ट सीक्वेंस चेंज या पॉलीमॉर्फिज्म
एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने RFLP डेवलप पढ़ा है, उसमें देखा था कि उसके थ्रू हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो सीक्वेंसेज हैं, जो पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंसेज है, उनमें कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। जो हमारा DNA है आफ्टर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, उसके रिजल्ट्स बराबर तो आ रहे हैं। cDNA सीक्वेंसिंग, सिस्टमेटिक मैपिंग एंड DNA सीक्वेंसिंग, जो ह्यूमन क्रोमोसोम है, cDNA सीक्वेंसिंग और सिस्टमेटिक मैपिंग DNA सीक्वेंसिंग के थ्रू, और पूरे के पूरे जीनोम का जो शॉर्टगन मेथड है उसके हिसाब से स्टडी। एनोटेटिंग ऑफ जीनोम DNA सीक्वेंसेस, कैसे हम जो जीनोम सीक्वेंसेज हैं उनको इंक्लूड्स करेंगे, कैटलॉग बनाएंगे जीन्स के, डिजीज जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, और ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस वेरिएशंस, क्या जो स्पेसिफिक जीन्स हैं उनमें क्या वेरिएशंस हैं, इनको इसके माध्यम से सीक्वेंसिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या एप्लीकेशंस हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये सबसे पहले मेडिकल एप्लीकेशंस, और बेसिकली जो काम स्टार्ट किया गया था, हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम लिया था, उसी के बेसिस पे इम्प्रूव डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। सबसे पहले अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन सा जीन है जो इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम वही उसी स्तर पे काम करते हैं कि हमको उसी जीन को जहां पर म्यूटेशन के थ्रू कोई चेंजेस हुए हैं या जिसकी वजह से कोई अनवांटेड या डिजीज कॉजिंग जो जीन है, उसके लेवल पे हम जा करके उसकी डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अर्लियर डिटेक्शन ऑफ प्रीडिस्पोजिशंस टू डिजीज, जो डिजीज कॉजिंग जीन है उनका हम जो डिजीज का ऑकरेंस है उसके पहले थोड़ी उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रेशनल ड्रग डिजाइनिंग में हम इसको यूज करते हैं। जीन थेरेपी एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर ड्रग्स, फार्माकोग्नोसिस या पर्सनल ड्रग्स, जो इन बीमारियों से रिलेटेड जो जीन थेरेपी है या फिर जो ड्रग्स हम बनाते हैं, उन ड्रग्स की जो डिजाइनिंग होती है वो काफी कुछ डिपेंड करती है कि जो आपके पास जीनोम है उसकी मैपिंग है। ऑर्गन रिप्लेसमेंट में कि अगर हमको जो ऑर्गन रिप्लेसमेंट है वो करना है तो सबसे पहले जो है हमको जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत। माइक्रोबियल जीनोम रिसर्च में न्यू एनर्जी सोर्सेज ज्ञात करने में कि जो बायोफ्यूल है उसके और क्या न्यू एनर्जी के और क्या सोर्सेज हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिटेक्ट पॉल्यूटेंट्स, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग में। प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर, जो है उनसे बचने में। सेफ और इफिशिएंट टॉक्सिक वेस्ट क्लीनअप में, जो हमारे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे टॉक्सिक सबस्टेंसेस को इन्वायरमेंट से क्लीन अप कर देगा, जिसके लिए हम लोग क्रॉप्स के केस में या प्लांट्स के केस में हम करते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं आपके वो इन्वायरमेंट में हेवी मेटल एक्यूमुलेटर का काम करते हैं। तो उन जगहों पर उनका प्लांटेशन बढ़ा करके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनमें कौन सा जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हेवी मेटल एक्यूमुलेशन के लिए, या तो हम उस जीन को उस लोकेशन पे होने वाली वेजिटेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फिर जो स्पेसीज इन हेवी मेटल एक्यूमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको उस एरिया में ग्रो करा करके हम वहां से इन्वायरमेंट क्लीनअप का काम कर सकते हैं। इस तरह से ये जो टेक्निक है वो हमारे लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेक्निक है जिसका कि हम कई तरह से उपयोग करते हैं। DNA फॉरेंसिक्स, ये आपको पहले भी बताए हैं कि आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सस्पेक्ट एट क्राइम सीन, किसी भी क्राइम सीन से जो पोटेंशियल सस्पेक्ट है उसका जो DNA हमको मिलता है उसको हम एम्पलीफाई कराते हैं। एम्पलीफाई कराने के बाद उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं और फिर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जो हमको ऑब्टेन DNA है, जो हमको थोड़ा सा मिला जिसकी हमने
पीसीआर के थ्रू मल्टीपल कॉपीज बनाई और फिर उसके फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अलग किए उससे, और जो उस सस्पेक्टेड व्यक्ति के जो अपने डीएनए हैं उनको दोनों के बैंड्स को मैच कराते हैं, और हूबहू अगर हमें सारे के सारे बैंड एक साथ मैच करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ यही सस्पेक्टेड व्यक्ति है, क्योंकि दो अलग लोगों के पूरे जो जीनोम है वो कभी भी एक साथ मैच नहीं करता है। एक्सनरेट रॉन्गली एक्यूज्ड पर्संस, अगर कोई व्यक्ति है जो की गलती नहीं किया है लेकिन उसको जबरदस्ती की सजा मिल रही है तो आप उसको बचा सकते हैं। इस्टेब्लिश पैटर्निटी एंड अदर फैमिली रिलेशंस, जो कि मतलब घरेलू परेशानियां होती हैं जिसमें कि पैटर्निटी केसेस हैं या फैमिली रिलेशनशिप है, उसके आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। आइडेंटिफाई इंडेंजर्ड एंड प्रोटेक्टेड स्पीसीज एज एन एड टू वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है हमारा उसमें वो जीन, उस जीन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कारण बनता है इंडेंजर्ड के लिए, और उन स्पेसीज के प्रोटेक्शन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि हम इस टेक्निक के थ्रू मैं जीनोम प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम इन एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हमारा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, इसमें जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हैं, इंसेक्ट और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, सबसे पहले हम इन जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद इन्हीं को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम दूसरी क्रॉप्स में भी इंजेक्ट कराते हैं या उनके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और इसके थ्रू हम डिजीज रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को बढ़ावा देते हैं। हेल्दियर, मोर प्रोडक्टिव, डिजीज रेजिस्टेंट फार्म एनिमल्स, सेम फॉर एनिमल्स के केस में कि जिन एनिमल्स को आप दूध के लिए यूज करते हैं उनमें दूध की अधिक मात्रा बढ़ाने वाले हम जो है डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स को बना सकते हैं। मोर न्यूट्रिशियस प्रोड्यूस, जो कि न्यूट्रिशंस हैं, जो खाद्य पदार्थ आप यूज करते हैं उनको और न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी ऐड कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स डेवलप करते हैं कि हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनसे बचें और जीन आइडेंटिफाई करके बायोपेस्टिसाइड्स की तरफ बढ़ेंगे। इडिबल वैक्सीन्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और फूड प्रोडक्ट्स में इडिबल वैक्सीन्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पेपर है, आप देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओपन जनरल है, प्लांट साइंस का एक रिव्यू आर्टिकल है जो कि जेनेटिक मैपिंग पे बेस्ड है, और ये क्रॉप प्लांट्स में किस तरह से जेनेटिक मैपिंग के थ्रू आप अलग अलग, जो इसकी समरी है कि जो जीनोम मैपिंग है, इट इज वाइडली एप्लीकेबल अप्रोच to scanning the genetic information of an organism for genes that are responsible for a specific traits. With the rapid increase in the world population, the demand for food is also increasing. हम सब लोग जानते हैं, जिसकी वजह से हम लोग genetically modified food crops को produce करते हैं, and there is a need to develop high yielding varieties. हमको अधिक प्रोडक्शन देने वाली वैरायटीज चाहिए। मोर रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, वो स्पेसीज जो कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए। देयर इज अ नीड टू प्रिसाइजली कोरिलेट जीनोटाइप विथ फिनोटाइप्स, देयरफॉर द ऑर्डर एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ जेनेटिक features that are associated with genetic variations and
Polymorphism can be determined by genetic mapping to detect the desirable trait for boosting productivity. Productivity को बढ़ाने के लिए genetic maps constructed using molecular markers can also be used to locate major genes which can then also be used as genetic markers. कि जो हम जीन लोकेट करते हैं उन जीन का पुनः एज ए जेनेटिक मार्कर हम यूज कर सकते हैं. क्लासिकल जेनेटिक्स, genetic polymorphism represents allele diversity, while in modern genetics, genetic polymorphism is the relative difference in genetic locus of the genome. ये समरी है उस पेपर की जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो पेपर है प्लांट साइंस का एक अच्छा मुझे मैं देख रही थी तो जीन मैपिंग पे मिला था. इसको मैंने कहा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी. इसी पेपर की ये समरी है जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया. अब मुझे लग रहा है कि आप को ये चीजें समझ में आ गई होंगी. और बच्चों अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है. बोलिए आप. थैंक यू गीता मैम. आवाज जा रही है क्या मेरी? हेलो हेलो. हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है. अच्छा, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो आज के टॉपिक से संबंधित? हमें लगता है मैम ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है तो उन लोग को लग रहा है क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इजी समझ गए हैं. गीता मैम थैंक यू. टॉपिक जो है आज की थोड़ी टफ है. बच्चे निश्चित रूप से एक बार इसको रिवाइज करेंगे, जाकर के पढ़ेंगे, तभी वो एबल होंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए. तो हम उन्हें आज का समय देते हैं. हमारा जो लास्ट सेशन होगा उस लास्ट सेशन में हम अब तक के जितने भी हमारे सेशंस चलेंगे उन सेशंस में लास्ट के हाफ एन आवर रखे जाएंगे. जो यदि कोई क्वेरी होगी तो क्वेरी पूछ सकते होंगे. लेकिन आपने इतने कठिन टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया बच्चों को. किस तरीके से पीसीआर रिएक्शंस में क्या क्या एंजाइम्स की जरूरत होती है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या आरएफएलपी का मतलब है, और क्या आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए बताने का प्रयास किया कि उसके जरिए क्या क्या सफलताएं हमें डिजीज को क्योर करने में मिल रही है. आपने रिसर्च पेपर्स को भी इंक्लूड किया ताकि बच्चे हमारे पीजी के हैं वो इन डेप्थ नॉलेज को समझ सके. तो आपका ये प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत सराहनीय है. मैं आपको बधाई देती हूँ इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए, और बच्चों को बधाई देती हूँ कि पूरे टाइम इसको जुड़ करके समझने का प्रयास करने के लिए. कि कोई भी चीज पहली बार जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो जरूर डिफिकल्ट लगती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसी प्रेजेंटेशन को जब यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है बार बार सुनेंगे, बार बार लिटरेचर को खोजेंगे, तब आप इसको और क्लियर समझ पाएंगे. और कोई भी डाउट रह जाएगा तो वो इस सर्टिफिकेट कोर्स के लास्ट डे पर हम इसको जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मैं गीता मैम को धन्यवाद देती हूँ और अपने बच्चों को धन्यवाद देती हूँ. लेकिन इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करने में मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर रवि कुमार यादव और पिछले लास्ट 2 दिन की स्पीकर डॉक्टर शेफाली सिंह मैम. आप दोनों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप दोनों लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. और निश्चित रूप से हमारे जो आगे के सेशंस होंगे वो भी इतने ही लाभान्वित होंगे, लाभान्वित करेंगे बच्चों को हमारे. तो आज के इस सेशन को मैं आप सबके उससे अब इसको बंद करना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम कल का सेशन भी 11 बजे से ही रखेंगे हम. बच्चे टाइमली जुड़ जाया करें. कुछ बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ. लेट जुड़ेंगे तो आपके कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो छूट जाते हैं, इसलिए लेट मत जुड़िए, समय से जुड़ जाया करिए. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. Thank you.